Hello everyone, thank you for having me here. I am Prashant Jha. Today the topic is covered for our CBC in-house training is Inclusive Education India. Before starting this topic, I must thankful to you and I'm very much grateful to you so that you are here and be a very laudable and good audience. You are the creator of this world, I must say. Being a teacher, we are the main center of this, you can say, world actually. Then whatever we are going to have in this particular 1 hour session, we have one thing have to be very serious. The thing is learning. पहली बात इसमें सबसे बड़ी बात है learning. Okay. As we have heard that in your childhood, like आपने पढ़ा होगा MRP, maximum retail price, inclusive of all taxes. Okay. We are used to this. हम लोग इसके used to हो चुके हैं कि inclusive all taxes. वही पे word is there. Inclusive means no any differentiation. We can't make any kind of differentiation between any kind of students. Okay. If I am not wrong, then all of you heard about that the word implementation. Without implementation, this topic is not as full as we are having. इसको फुलफिल करना बिना implementation के वो possible नहीं है. What I am trying to say, everyone has their own thinking, own capabilities, own abilities. We are talking about children's. Okay. So let's start the topic inclusive education. As we know, सूरज जो है, sun is not making any kind of differentiation between us and animals and the rest species of this world. सन जैसे हमें अपने लाइट के लिए, हीट के लिए अगर वो हमें नहीं करता डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट, तो हमें भी अपने बच्चों के साथ किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन या उसको अलग करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है अकॉर्डिंग टू CBSE, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी. अगर अपने बच्चे को सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं, तो वी आर कमिटिंग क्राइम basically. If I am not wrong, if I am talking about our history, in the Mahabharata, Karna was deeply deprived by द्रोणाचार्य. कर्ण को द्रोणाचार्य ने बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया. उस टाइम क्या था, एजुकेशन इज ओनली अबाउट क्षत्रियास, ब्राह्मण्स, भाई उनके साथ ही पढ़ेंगे. तो वो जो कर्ण थे हमारे, नो डाउट he became a great warrior, a great archerist, but at that particular time Drona has refused to educate Karna because of his you can say birth. He is treated like a son of chariot, सूत पुत्र में कहा जाता था उनको. इसी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए द थिंग केम इन, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. एजुकेशन फॉर ऑल. वो ब्लाइंड है, वो छोटा है, वो बेकार है, वो डिजेबल है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो उसे समझ में नहीं आता, वो बेवकूफ़ है, बट एजुकेशन उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि
एंड ऑफ द डे उसे हमें हमारे ही पास आना है। अगर कोई लड़का ब्लाइंड है, कोई लड़का, अगर कोई बच्चा हमारा अगर कोई डीफ है, उसको कोई विजुअली इम्पेयर है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो लेम है, फिर भी उसको इसी सेंटर में रहना, इसी एरिया में रहना है, तो उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? फिर उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आखिर अगर उसको नहीं पढ़ाएंगे और हमारे पास ही आना है उसको इसी सोसाइटी में, तो हाउ कैन वी मेक सिग्रीगेशन? ओके, द फंडामेंटल प्रिंसिपल, द फंडामेंटल थिंग इज in this topic is no segregation, no barrier, no segregation, no barrier, no discrimination, no differentiation, irrespective to caste, view, body, language, diversity, culture, whatever be the you can say parameters that we are having to discriminate. Actually, the thing is, this education is for all. If I can define this, what is this inclusive education? Means education is not for a single person, not for a single community. Education is for all. How can we define? The definition is, it is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. एक ही रूफ के नीचे जो सेम बच्चे हैं, जो कॉमन बच्चे हैं, and those who are having some difficulties, disabilities, it brings all students together. As I earlier said, लाना तो हमें लास्ट में एक ही सोसाइटी में है, तो उसे हम फिर दूर क्यों रखें? द थिंग इज, वन क्लासरूम, वन कम्युनिटी, regardless of their strengths or weakness in any area, and seeks to maximize the potential of all students. This consists your inclusive education. किसी भी कोई कास्ट का वो नहीं होना चाहिए, कोई डिजेबिलिटी नहीं होना चाहिए, और उसको एक ही रूफ के अंदर, पहले क्या था, अगर हिस्ट्री जाना चाहेंगे हिस्ट्री, तो द फर्स्ट स्कूल that was developed for deaf and dumb in 1885, बट वो ठीक से चल नहीं पाया। हमने क्या किया, यहाँ इस स्कूल में एक स्पेशल टाइप के बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए उनको साइड कर दो। हाँ ठीक है वाली बात जो आई थी वो उसमें नहीं चल पाई। ये जो हाँ ठीक है वाली बात है कि हाँ ठीक है, ये ठीक है वाली बात इसमें नहीं आ पाई, क्योंकि हमने क्या किया, उसको ठीक है करके नकार दिया। भाई तुम इस बच्चे को हो, तुम ठीक हो, चलो जाओ। ऐसा नहीं था। हमने क्या किया, उसको यू आर विद मी, आप हमारे साथ रहेंगे, है ना। प्रीमियम प्लेस्ड अपॉन फुल पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड अपॉन रिस्पेक्ट फॉर देयर सोशल। Before I am going to elaborate this, we have some abbreviations. For being a teacher, we have to follow this root lines, and root lines are 3 P's. According to me, ऐसा कोई ऐसे थ्योरी नहीं है कि हाँ ये मैंने लिख दिया तो हो गया। According to me, 3 P's. Whatever I understood, these 3 P's are very important. And what are the 3 P's? Patience. सबसे बड़ा बात ये पेशेंस। For being a teacher, patience is your most powerful weapon. अगर ये ना हो तो हम टीचर बन ही नहीं सकते। A teacher can be a engineer, doctor, a social political leader, a robber, a dacoit, a thief,
क्योंकि वो सिखाता है उस तरह का तरीका, थिप कैसे करना है, पढ़ाना कैसे है, डॉक्टर कैसे बनना, इंजीनियर कैसे बनना है, और चोरी भी कैसे करना है, वो भी एक टीचर ही है। बट दैट इज अ नेगेटिव थिंग। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू बी वेरी पेशेंटफुल। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी accomplish the knowledge, accomplish the target of teaching. Patience, perception, and planning. And 3 L's. 3 L's. 3 L's. Learning. Basically, these 3 L's for for children. As we are the motivator, as we are the educator, we are the pillars, but the cement, but the sand, but the you can say soil is what? L. These L's. Okay. Learning, liabilities, learning, listening, learning, listening, and liabilities. थ्री पी की बात करें तो फर्स्ट थिंग इन पेशेंस, परसेप्शन. एवरी टीचर्स हैव देयर ओन परसेप्शन, ओन थिंकिंग, ओन क्रिएटिविटी. सबका अपना अपना परसेप्शन है, थिंकिंग है. हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज थ्रू देयर प्रॉपर चैनल्स, वो बच्चों पे कैसे लगाते फिर वो अलग देखने वाली बात है. एंड प्लानिंग, हमें पढ़ाना है सारे बच्चों को, तो विदाउट प्लानिंग वी कांट मूव अ सिंगल स्टेप. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट, वी आर हैविंग लाइक कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कोई इसमें बहुत बेवकूफ़ है. सो फॉर दिस कंपल्सन, फॉर दिस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, वी हैव टू बी वेरी मच एफिशिएंट. इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. नाउ दीज 3 L's फॉर आवर डियर किड्स, डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज लर्निंग. वो कैसे सीखता है, वो कैसे सीखता है, कैसे समझता है, दैट इज लर्निंग. लिसनिंग, सुना ही नहीं कभी कुछ, बस सीख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं. लर्निंग, लिसनिंग एंड लाइबिलिटीज. लाइबल होना बहुत जरूरी है किसी के लिए भी. लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज ही जो है हमें इस बच्चों के प्रति या बच्चों को शिक्षक के प्रति ये एक इसको आप पिलर कह सकते हैं. ठीक है. तो दिस 3 C's and this 3 P's and 3 L's contains most powerful weapon, most powerful things in this education. Okay. Next, जैसे हमने पहले कहा था कि sun is not making any kind of difference between us and other kind of organism. सन कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं हीट तुम्हें नहीं दूंगा, मैं हीट तुम्हें नहीं दूंगा. उसी तरह अगर हम बात करें अपने इस एजुकेशन के लिए, तो ये सिग्रीगेशन क्या है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है. सिग्रीगेशन इज द लॉ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. इस नेचर ने, बात करें नेचर की, तो इस नेचर ने हर शेर, बाघ, टाइगर, एलिफेंट, इवन अ स्मॉल किड लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, सबको जगह दी, सबको प्लेस दिया, है ना. उसी तरह हमें भी अपने क्लासरूम्स में ये काम करना पड़ेगा, सबको प्लेस देना पड़ेगा. हमने यहाँ, अच्छा कैसे देना पड़ेगा, हाउ? वी हैव सीन यू हैव सीन जस्ट बिसाइड द क्लासरूम ऑफ नर्सरी, पतले दुबले मोटू सेठ, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कुछ, 6 अलाई खा के वो बहुत मोटे हो गए, ऐसा कुछ इसमें पंक्तियां लिखी हुई हैं. मतलब क्या, वी this walls, this staircases, the ground we can use as a you can say you can use a particular things. जैसे उसमें कुछ लिख दिए, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, बच्चे कैसे सीखेंगे?
उसमें आपने ABCD का वो पूरा बना दिया, वॉल्स पे बढ़िया खासा पेंटिंग करा हुआ है, ठीक है, वॉल्स पे पेंटिंग है, कुछ राइम्स है उस पर, रिपोर्टेड राइम्स किया हुआ है, तो ये क्या है, लर्निंग है। हमें क्या करना चाहिए, रैम बनाना चाहिए। किसी भी स्पेशल जो डिजेबल होते हैं, जो जिनका जो व्हील चेयर पे होते हैं, उनके लिए स्कूल्स में क्या होते हैं, स्टीयर केस होते हैं, बट उनके लिए रैंप नहीं होता, तो उनके लिए रैम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये सब उससे क्या होगा, रैम देने से उसको कंफर्ट फील होगा और वो आएगा स्कूल में। पहले ये सब नहीं था, पहले हम लोग बोले भाई तुम चले जाओ देहरादून चले जाओ, वहाँ पे स्कूल खुला हुआ है, बहुत पहले की बात है, वहाँ पे देहरादून स्कूल खुला हुआ, वहाँ पे आप अपना सारा का सारा एजुकेशन लीजिए। जो डीफ हैं, जो डम्ब हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, जो माइंड से कम है ना। यू हैव सीन, वी हैव वॉच्ड द मूवी काबिल। काबिल एक मूवी आई थी, काबिल एक मूवी आई थी। नोट है किसी के पास 200 या 100 का? मेरे पास है, लेकिन वर्थ मेरे पास वॉलेट नहीं है। उसमें क्या दिखाया गया था, वो जो ऋतिक रोशन है, उसने क्या किया, वो ब्लाइंड था उसमें, है ना, उसका फेयर हुआ था 80 रुपीज, एंड ही हैड गिवन टू द ऑटो ड्राइवर अ सम ऑफ 100 रुपीज। उसको 20 रुपये उसने नहीं लौटाया, उसने केवल 10 रुपये लौटाया। तो उसने क्या किया, उसको मेजर किया। तो आप देखे होंगे बिफोर 2015 the length of the note, the length of the 10 note and the 20 note is quite differ। उसका डिफर कर रहा है वो, जब वो उसको लेंथ में नापा ना, तो 20 का नोट जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है 10, तो वो जान गया। तो वो जो सीखा वो खुद ही सीखा था, ये उसको कोई सिखाया नहीं भाई तुमने अपना ऐसे करके। तो these are the tools which can applied by पर्सनल फिजिकली चैलेंज्ड किड्स। तो उन्होंने उसने क्या क्या नापा, तो भाई एक ही नोट निकला, या तो वो 10 का नोट होगा या तो 20 का नोट होगा। तो 20 का नोट तो अच्छा नहीं, छोटा था वो, तो उसने इमीडिएटली उसको पकड़ लिया। इसे ही बोलते हैं ये सेंस है। तो किसके लिए था ये, उसको ऐसा पढ़ा दिया होगा। अनफॉर्चुनेटली हमने नोट उनको दे दिया, रखना चाहिए था हमें, खैर कोई बात नहीं। हाउ इसके हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी टीचर्स आर, वी दिस गवर्नमेंट, हम लोग कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। कल्चर, रेस, जेंडर, सबसे बड़ा फैक्टर जेंडर का ही है। वो गर्ल है उधर, उसको कोने में बिठा दो, उसके लिए अलग बेंच, वो उसके लिए अलग सिस्टम्स, और बॉयज भाई तुम लोग ऐसे करके बैठो। रिलीजन, विजुअली hearing impaired, these are the differentiation which made by the schools। अभी क्या है, ये सारे इन सारे अलगाव को, इन सारे डिफिकल्टीज को, डिफरेंशिएशन को हटा देना है। कैसे? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो टीचर्स का जो रोल है इसमें ना, अल्टीमेटली करेगा कौन? वी द टीचर्स आर। ये हमें ही करना है, या हम ही करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि हाउ कैन वी क्या बोले उसको, कैसे अलग अलग कर सकते हैं बच्चों को हम लोग। ओके, some kids, some children have you can say IQ less than 70. If I am talking about the IQ, intelligent quotient, types of children. नॉर्मल चिल्ड्रन हो सकते हैं, नॉर्मल, स्पेशल, और GNT, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। This classification done by on the IQ level। नॉर्मल बच्चों का IQ जो होता है ये बॉर्डर लाइन पे है, एवरेज बच्चों के लिए बात करें तो इनकी IQ जो है
70 से थोड़ी सी ज़्यादा. Specials IQ less than 70s, and this, sorry, इसको अगर ले ले ऑन एन एवरेज तो ये आएगा आपका 90 to 110. ओके, एंड दिस गिफ्टेड एंड टैलेंटेड किड्स चिल्ड्रंस IQ level is more than and near about 140. अब एक ही क्लासरूम है हमारे पास, उसमें गिफ्टेड बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्पेशल भी पढ़ रहे हैं, और IQ, इनका IQ वैसा है 19 to 110, IQ 70, IQ less than 140. पहले क्या था, इनके लिए अलग अलग कोर्सेज, अलग एजुकेशन, सबके लिए अलग अलग एजुकेशन. इनका क्या है, इनको दो काम चाहिए. इनके लिए एजुकेशन एनरिच होना चाहिए, ठीक है. द वर्ड गिफ्टेड एंड टैलेंटेड यूज फॉर द किड्स विच नीड्स एनरिच एजुकेशन but at the same roof. Okay, if I can summarize this total whatever I have written on the board. Inclusive education, before this new education policy 2020, we are having two set of education system, that is inclusive and integrated. हमारा टारगेट था पहले इंटीग्रेटेड करना. इसमें क्या हुआ, इंक्लूसिव में क्या हुआ, ऑल जैसा इसका नीड है वी हैव टू बी गेट एडमिटेड. बट इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड में मेरा मेन मोटिव था गेट एडमिटेड ओनली, बस एडमिशन होना चाहिए उसमें, ठीक है. गेट एडमिटेड मतलब इस इंटीग्रेटेड में खाली एडमिशन ले लो और काम खत्म. इस इंक्लूसिव में क्या करना है, वी आर हियर फॉर किड्स, वी आर हियर फॉर स्टूडेंट्स. हमको बच्चों को नहीं बदलना है, सिस्टम को बदलना है. अभी क्या है, तुमने याद करके नहीं आया, तुम चलो निकलो, तुम क्लास के बाहर चले जाओ. वी आर कंपेल्ड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को बाहर निकाल देंगे या किसी को एक छेड़ लगा ले, बट वी आर कंपेल्ड एक्चुअली. द थिंग इज, दिस इंक्लूसिव एजुकेशन can't change the nature, power, learning abilities of a kid, of a children, but we have to change the system. But this integrated mainstream courses are no care. स्पेशल टीचर्स रख दिया गया, अपना क्लास कराएंगे वो. अगर मुझे कुछ पढ़ाना है तो उसके लिए स्पेशल एक क्लासरूम है, एक रूम में कुछ नहीं होने वाला है. ये था इंटीग्रेटेड सिस्टम. ओके, अब बात करें बच्चे में डिजेबिलिटीज कैसे कैसे हो सकती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ challenges, how many types of, you can say, differentiation difficulties of a child have. The first is, before using these words, I must say I am not a doctor, I am just a teacher, but we are having here to learn something. I have to use those words, and the words are related to learning disabilities. First is dyslexia. आप पढ़ते होंगे, डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई वर्ड है, डिसलेक्सिया. ये क्या क्या होता है? टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. डिसलेक्सिया, ये क्या होता है डिसलेक्सिया? In 2007, a movie
by Amir Khan, and the name is Tare Zameen Par. That particular boy was suffering from this dyslexia. उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती थी जब क्लास में पढ़ने के दौरान. And he seems to be although he was a good student, but उसको लगता ही नहीं कोई हमें पढ़ाया जा रहा गलत तरीके से कुछ ऐसा. तो उसको इस डिस्लेक्सिया का नाम का कुछ प्रॉब्लम था उसको. वो क्या करता था, इसमें बच्चे करते क्या है, पढ़ते गलत, लिखते गलत नहीं है. ये प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, मैं बताऊंगा अभी. वॉज गॉड एंड 6. This type of problem those who are facing, was is written as सौ. उसको ये 100 लगता है, वो उल्टा पढ़ता है. गुड को वो पढ़ लेता है, गॉड को पढ़ता है डॉग. उसको 6 उसको 9 दिखने लगता है. दिस इज डिसलेक्सिया. मतलब ये क्या है, ये बेसिकली ये किसी को भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि हमने भी कभी ऐसा फेस किया हो, ये किसी को हो सकता है. ठीक है, गिफ्टेड बच्चों को भी हो सकता है. ये जो बच्चे गिफ्टेड टैलेंटेड उनको भी हो सकता है बच्चे में. जब वो गलत पढ़ेगा ये तो फिर सीखेगा गलत. जब वॉच को वो 100 पढ़ रहा है, गॉड को डॉग पढ़ रहा है, इसी को हमें हटाना है. वी टीचर्स आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू इराडिकेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. कैसे करेंगे आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया. नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया. Dysgraphia. This dysgraphia consists of word graph. हाँ, उसको क्या है, ऐसे ऐसे ग्राफ जो हम लोग ग्राफ में यूज करते हैं है ना, उसको उसमें ही वो उलझा रहता है, उसको लिखने में समस्या है. अभी इसका एग्जाम्पल कैसे है. Last 2 years I used to teach a little girl named, I can't take the name actually, but she always used to write what, B in place of D. सारे बच्चे जो हैं B को या तो D लिखेंगे, जब डॉक्टर बोलो तो डॉक्टर लिख देंगे. उनको B और D में, जो बच्चे मैडम देख रहे होंगे आप लोग जो जूनियर से बच्चे पढ़ा रहे होंगे उनको ये B और D में बहुत दिनों तक फर्क नहीं समझ में आता है. उसको B भी D लगता है और D भी. तो उसको क्या करता है, वो B को कभी कभी D लिख लिया और D को B लिख लिया. ये समस्याएं आते रहती है, ये प्रॉब्लम्स आते रहती है. ये जो है ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया. उसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उसकी. उसकी राइटिंग्स रेयरली इंप्रूव हो. आप देखते हैं जैसे मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम इस प्रॉब्लम से ताल्लुक रखते हैं. बट सिंपल थिंग क्या है, जब हम में जब ये आता गया या किसी में आता गया, उसने उसको इम्प्रूव नहीं किया, वो छोड़ दिया भाई जो है बी डी है क्या दिक्कत है. लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हमें वो हटाना चाहिए, हमें वो देखना चाहिए. और द वर्ड इज हियर पेशेंस. और तभी पॉसिबल है वी कीप पेशेंस. ओके, नेक्स्ट इज डिस्कैलकुलिया. डिस्कैलकुलिया 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 हमको ऐसा बच्चा है जिसको कैलकुलेशन से प्रॉब्लम हो रही है. उसको आप बोलेंगे कि चलो बेटा 1+2 जल्दी करो, तो वो करेगा. बट वो उसका जो एबिलिटी है, जो स्पीड है, वो धीरे रहता है. तो उसको समस्या किस में है, कैलकुलेशन में है. उसको टेबल्स ठीक से हो सके तो ना याद हो, वो मैथमेटिक्स ठीक से नहीं समझ पा रहा हो, या उसको एक और बात हो सकती है, उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. ये कैलकुलेशन बहुत बेकार चीज़ है, इसको हटाओ, हमने सीखना है. दैट प्रॉब्लम इज डिस्कैलकुलिया. जनरली ये सारे बच्चों में होती है. ये सारे बच्चों में होती है जो
जो स्पेशल है, जो नॉर्मल है, जो गिफ्टेड है, सब में होती है। बट दिस डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया ये हाँ नॉर्मल चाइल्ड में नहीं होती, स्पेशल में होती है। नेक्स्ट इज अप्रैक्सिया। नेक्स्ट इज अप्रैक्सिया। फॉर दिस आई हैव टू रेज द बोर्ड। अच्छा एक और ये जितने टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इन सबका आईक्यू लेवल जो है बिलो 70 है ना। इनका जो भी है बच्चे, इन सबका आईक्यू लेवल 70 है, ठीक है। बेसिकली आई एम डीलिंग दिस काइंड ऑफ डिजेबिलिटी, जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हम पढ़ रही है क्या पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। इधर ही और शी वॉज फेसिंग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या उसके दिमाग नहीं काम कर रहा है, जो भी है, तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज वी कांट सिग्रीगेट, वी कांट डिफरेंशिएट the kids which are facing this kind of problem, this kind of situation. Okay, next is dyspraxia, या इसको बोलते हैं dyspraxia। इसका एक नाम और है एप्रेक्सिया। ये बेसिकली क्या होती है, ये बच्चे एक्टिविटी कम कर पाते हैं, पढ़ने में होते हैं अच्छे, बट दीज आर वेरी लीस्ट एक्टिव इन देयर क्लासेस, इन स्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ दे यूज टू फेस मसल्स प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम ये होता है, मसल्स के प्रॉब्लम्स होती है। मसल्स अगर ठीक से डेवलप नहीं हुआ, मसल्स की प्रॉब्लम, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। आप देखते हैं कि ये बच्चे सूलेस नहीं बांधते, सूलेसेस खुले रखते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। सूलेसेस बटन ठीक करने में दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनके जो मसल्स उतने डेवलप नहीं हुए, तो उनको झुकने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली बटन या टाई का नॉट बनाने में, आई एम द विक्टिम, आई एम द यू कैन से डिस्पेक्सिया। तो मुझे भी आज तक टाई बांधने नहीं आई। टाई बांधना सबसे बड़ा काम है बच्चों के लिए, मुझे बाद में आया, अब तो सीख गए, लेकिन जब बच्चे छोटे बच्चे हुआ करते थे क्लास 5 या 4 में, वो जल्दी सीख लेते थे, तो हमें हमेशा उन पर डिपेंड होना पड़ता था। तो बटन तो ठीक है बांधना, बटन लगाना या लेसेस बांधना, बट टाई बांधना ये हो सके तो मेरे पास भी हो, पहले अभी नहीं हमें आता है, लेकिन जब मैं छोटा था तो डिस्प्रेक्सिया नाम के जो ये डिजेबिलिटी है, इसमें ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट इज ADHD। what it stands for? This is attention deficit hyperactivity disorder। attention deficit hyperactivity order। आप देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, जो बच्चा 1 साल 1.5 साल 2 साल का है, वो बहुत हाइपर सुपर एक्टिव है उसको। तो कुछ बच्चे ऐसे बहुत दिन तक रहते हैं, 12, 13, 14 या 15 तक। अगर उनमें ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, वो कहीं एक जगह बैठ नहीं सकते, वो क्लास में ही राउंड अप करते रहेंगे, है ना। मीन्स दे बिहेव लाइक अ मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉन्स, भाई कभी उधर कभी उनका ध्यान उधर, है ना। तो दे आर फेसिंग ADHD, एडवांस डेफिशिएंस हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर डिसऑर्डर। और कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पुड़िया नहीं है मेरे पास, लो फेंका मुंह चला गया और ठीक। ये सब जनरल पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ वेरी लकी टुडे दैट आई एम डिलीवरिंग दिस काइंड ऑफ लेक्चर, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग टुवर्ड्स यू, ऑन यू, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टीच दिस द स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए, मेरे लिए एक मैं कहूँ तो गर्व का विषय, मैं ये जान पाया, मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ। द नेक्स्ट इज, ये बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जनरली ये जो प्रॉब्लम है अप टू 12 ईयर्स इट हैज गॉन। बट अगर किसी में है तो वो किससे फेस कर रहा है, वो ADHD। नेक्स्ट इज PTSD।
कभी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, वो उसको भूल ही नहीं पा रहा है। पोस्ट PTSD मीन्स पोस्ट ट्रांसमिटर स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई बच्चा अगर अपने लाइफ में, ये जनरली एडल्ट में भी होता है, ये तो बच्चों में होना कोई बड़ी बात नहीं है, एडल्ट में होता है, वो किसी इंसिडेंट को नहीं भूल पा रहा है, तो उससे जो वो डिप्रेस्ड हो रहा है, दैट कॉजेज हिम PTSD। इससे होगा क्या, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, वो हमेशा लीन एंड थीन रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा, वो हमेशा उसी बात को सोचेगा मेरे साथ हो गया था, आज नहीं 4 साल 5 साल मेरा टांग टूट गया, मेरे दिमाग में चोट लग गई, मुझे किसी ने एक चाटा लगा दिया। ये है PTSD। कोई बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ उसके साथ, तो दे आर फेसिंग PTSD। ये सब फिजिकल चैलेंजेस है, डिजेबिलिटीज है, किड और चिल्ड्रन कैन हैव। ओके, नेक्स्ट इज एफेसिया। एफेसिया क्या है, किसी को बोलने में दिक्कत आती है, वो रॉ को सॉरी डी डॉ को पढ़ेगा डॉ कैसे लिखते हैं, डॉन एंड ही इज ट्राइंग टू से डॉन। जिसको बोलने में दिक्कत आ रही है ना, तो वो है उसको उसके वर्ड्स, उसकी लिपसिंग जो है प्रॉपर नहीं हो रही है ना, तो वो डॉन को डॉन बोल दे रहा है। आप देखे होंगे ऐसे बच्चे आपको मिलते होंगे, रॉ को लॉ बोल देगा, रगड़ लगड़। तो दे आर फेसिंग दिस अफेसिया, उसको बोलने में दिक्कत आती रहती है, हकलाना भी इसमें आता है, जल्दी जल्दी बोलना, और अपने को वो चाहता क्या है कि मैं छुपा रहूं, मुझे कोई जाने नहीं, क्यों पता है मैं जैसे डॉन को डॉन बोलूंगा, समवन इज गोइंग टू लाफ एंड दे आर स्टार्टिंग मेकिंग फन ऑफ मी। तो वो इसके वजह से वो उसको बताता नहीं है, और ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है, क्योंकि ये होते होते बड़े तक चले जाती है। आफ्टर एडल्ट यू आर फेसिंग, अगर आप एडल्ट के बाद फेस कर रहे हैं, देन इट इज अ वेरी, इट सिम्स टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम एक्चुअली। तो अगर बड़े में जाके भी डॉन को हम डॉन ही बोलेंगे, तो ये आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, एक हंसने का, आपने उसको हंसने का मौका दिया बेसिकली। नेक्स्ट इज ऑटिज्म। ये आजकल बहुत चला हुआ है, डॉक्टर इसका इलाज भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, माय नेम इज खान करता रहा, एक फिल्म आई थी, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वो क्या था, वो एक वर्ड को पकड़ लिया, रिपीटेटिव वो हो रहा है। जब उससे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मतलब वो एक पर्टिकुलर वर्ड को उसने अपने को इंक्लूड कर लिया है, समाहित कर लिया है, जिससे वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो वो जो मूवी बनी थी माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, एंड दैट इज फॉर ऑटिज्म। रिपीटिंग मोड पे रहेंगे हमेशा, वो एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे, उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, वो सोशल एक्टिविटी बहुत कम दिखाएंगे, वो लोगों के बीच जाने में कतराएंगे, है ना। एंड रिजल्ट क्या है इसका, वो दैट पर्टिकुलर बॉय, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट दिस कम्युनिकेशन गैप मेड हिम अ वेरी, यू कैन से, उसको खराब बनाता है, बहुत उसका मोरल डाउन करता है। अगर ऑल उसके पास इतना इंटेलिजेंसी है, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू क्लियरिफाई, जो भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या है, बहुत कहेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी उसका क्या है, डिमेरिट्स है। नेक्स्ट इज सेरेब्रल पाल्सी। ये क्या है, cerebrum is a part of brain. Cerebrum is a part of brain, and this causes due to damages and some damage in brains. अगर ब्रेन में कोई डैमेज होती है, कोई चोट आ जाती है ऐसा, तो उससे होता है सेरेब्रल पाल्सी। क्या होती है उससे, तो जनरली ये नहीं पाया जाता बाय बर्थ, बट अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसमें ये सेरेब्रल पाल्सी आने लगता है।
लीगल प्रोविजन फॉर स्पेशल एजुकेशन. इस स्पेशल एजुकेशन लीगल प्रोविजन क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड द फर्स्ट इज द अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट्स एंड द लोकल अथॉरिटीज शैल इंश्योर द एवरी चाइल्ड with a disability has access to free education in an appropriate environment till he attains the age of 18. सरकार ये सर्टेन करे, सुनिश्चित करेगा 18 साल तक उसको शिक्षा मिलेगी. ठीक है, वो विकलांग हो, वो जैसा भी हो. Endeavor to promote the integration of students with disabilities in the normal schools. The appropriate governors and the local authorities shall by notification scheme for first is impairing education through open schools or open universities. बात आ रही है कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटीज. सेकंड इज प्रोवाइडिंग एवरी चाइल्ड विथ डिजेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल बुक्स. हमने इस क्लास बना लिया, स्कूल बना लिया, एक रूफ दे दिया, किताबें नहीं हैं, और किताबें हैं दे आर वेरी कॉस्टली. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द बुक्स मस्ट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. वी नीड सम ओपन स्कूल, सम ओपन यूनिवर्सिटीज. इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द एजुकेशन, उसके लिए जो भी नीडेड इक्विपमेंट्स हैं वो होना चाहिए. ठीक है. Next is children with diverse need. Means a child who is assessed by an individual with the appropriate qualification as having one or more cognitive, physical, social, emotional, behavioral or language needs that requires significant additional support. अगर किसी बच्चे को विविध मतलब अलग अलग तरह की आवश्यकताएं, नीड है, तो उसके लिए उसका एक पर्टिकुलर असेसमेंट होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए. कैसे? फिजिकली, सोशली, इमोशनली, भावनात्मक, व्यवहारिक, ये सब उसके क्या है जो डाइवर्स नीड होते बच्चे का. अब बात आती है इसके कुछ इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज, एजुकेशन लॉ एंड डिसेबिलिटी लॉज. द न्यू एंटी डिस्क्रिमिनेटरी क्लाइमेट हैज प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर मच चेंज in policy and statute nationally and internationally. Inclusion has been enshrined at the same time that segregation and discrimination have been rejected. Articulations of the new developments in ways of thinking, policy and in law include: first is the UN Convention on the Right of the Child 1989, which sets out children's right in respects of freedom from discrimination and in respect of the representation of their wishes and views. The Convention Against Discrimination in Education of UNESCO prohibits any discrimination, exclusion or segregation in education. अगर हम टीचर हैं, टीचर होने के बाद सबका अपना थिंकिंग है. कोई कह रहा है कि नहीं, हम उन बच्चों को नहीं रख सकते साथ में, तो एज अर्लियर साइड वो क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, बट तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए बाय गवर्नमेंट 6 month ट्रेनिंग, दे आर हैविंग 6 month ट्रेनिंग. इवन अगर रिक्वायर्ड है 1 साल का तो 1 साल भर का दिया जाएगा. सबसे बेसिक थिंग क्या है, स्मार्टफोन्स, डिजिटलाइजेशन, ओके, नेट, टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. स्कूल्स को ऐसे बनाना है जो उन बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम अब उनसे क्या है, डेफिसिट है, अलग है. ठीक है. I think I forget this D's actually. There are 3 D's also. D's means D. This topic is all about disabilities, differences, 3 D's. Disabilities,
differences and demonstration. ये इस तीन को हम रिमूव कैसे करें, इरेडिकेट कैसे करें, उसके लिए हमारे पास 5 तरीके हैं. बाय SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी. आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, एवरी चाइल्ड, एवरीवन नीड्स अ प्रॉपर स्कूल. तो स्कूल को रन करने के लिए, स्कूल चलाने के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है SMC. वो क्या कर सकते हैं, वो उसमें क्या रोल कर सकते हैं? तो फर्स्ट है प्रिंसिपल. मीन्स POSDC. प्रिंसिपल, हर एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है. अब वो किस में चलेगा? एजुकेशन फॉर ऑल. जो भी स्कूल हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, दे मस्ट गो द वर्ड ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, विदाउट एनी सेग्रीगेशन, विदाउट एनी डिफरेंसेस, विदाउट एनी differences, caste, creed, culture, diversity, reason, religion, okay, learning disabilities, visually impaired. Second is organization. Organization must well occupied, full supportive systems. अगर वो स्ट्रांग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, तो वी कांट इम्पोज दिस काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन एनीवन. हम ऐसा किसी के ऊपर डाल ही नहीं सकते हैं किसी बच्चों के लिए. एंड सेकंड, स्टाफिंग. बच्चों को पढ़ाना है हमें विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो उसके लिए वी हैव अ प्रॉपर स्टाफिंग कैपेसिटी. Staff means the pillars, teachers. They are the, क्योंकि बच्चा तो हमारे स्कूल में आ गया, अल्टीमेटली हमें ही सीखना है और हमें ही सिखाना है उसको. तो प्रॉपर स्टाफिंग होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में. एनफ अमाउंट होना चाहिए, डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. नेक्स्ट, डायरेक्शन. डायरेक्शन इज 4 नंबर. डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, सारे बच्चे एक रूफ के अंदर बैठे हैं कि नहीं. कोई ऐसा तो नहीं है अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है तो चला गया प्ले ग्राउंड में खेल रहा है. सारे बच्चे अगर सीखने का टाइम है, लर्निंग टाइम है, तो वहाँ पे वो अपने आप को प्रॉपर सेटअप करें. और क्लासेस मस्ट बी रन, क्लासेस विल रन ऑन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. एंड लास्ट इज कैपिटल. सब अगर ना हो, सब हो, हमारे पास कैपिटल ना हो, इतना हमने बोल दिया, बहुत भाषण दे दिया, ये बात होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए, फ्लेक्सिया, डिफ्लेक्सिया, डिस्फ्लेक्सिया, और अगर कैपिटल कॉस्ट में हमारे पास ना हो तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे. फॉर मेकिंग दिस, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड है उसके लिए रैम बनाना पड़ेगा हमें. कोई शॉर्टर बच्चा है, बहुत छोटा है, तो हमने पहले बनाया हुआ वहाँ पे नल, जो हमारा वो नल पॉइंट है ना, जो हमारा डिगिंग पॉइंट है, वहाँ पे हमने एक ऊंचा बनाया है, फिर एक नीचे बनाया है. ठीक है, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अलग सा है. तो दिस हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल? बाय हैविंग अ प्रॉपर कैपिटल. ओके, बिना इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के वी आर नथिंग. अगर कोई बच्चा सीखने में कम है तो उसको हम जो भी वॉल पे प्रिंटेड मटेरियल्स है, प्रिंटेड राइम्स है, उसको हम दिखा. उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर पेंटर चाहिए जो ऐसा पूरे क्लास को बना सके. वॉल्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए. जो सरफेस है जिस पे मैं खड़ा हूँ वो बिल्कुल बच्चों के लिए क्या हो, डेडिकेटेड हो बिल्कुल, है ना. जो स्टीयर केसेज है, वी हैव टू प्रिंट A फॉर एप्पल, A फॉर एंड B फॉर बॉल ऑन द, क्योंकि वो चढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे. क्योंकि सीखना इज व्हाट, लर्निंग इज व्हाट अबाउट, ऑल अबाउट
वॉचिंग, सीइंग, वो देखना है, जो सीखना, जो देख के समझते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दे नीडेड व्हाट, कैपिटल कॉस्ट. ओके, on the behalf of this training session, let me ask some questions from you. The question is, what is the basics of this special education? Okay, first is, the options are cares to the need of all students, care to the need of general teachers, help differentially abled student to master skill, और हमें बच्चों को अलग कर देना चाहिए. चौथा ऑप्शन ये है. फर्स्ट है सभी छात्रों को आवश्यकता को पूरा करना है. सेकंड है सामान्य शिक्षक की आवश्यकता है, हमें बच्चों को अलग कर देना चाहिए, या कोई नहीं. इस पूरे ट्रेनिंग के बिहाफ पे हमसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इसका आंसर होना चाहिए? इफ एनी कैन आंसर. हाँ, द ऑप्शन इज, किसी छात्र को हमें अलग नहीं करना है. शुरू से ही पढ़ रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल, उसके लिए ठीक बात है कि टीचर्स हमें स्पेशल चाहिए, बट किसी का सिग्रेगेशन, किसी बच्चे का अलग नहीं करना है. ठीक है. इस पर एक लाइन कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने. वो उन्होंने क्या कहा था, when learning is purposeful, जब लर्निंग क्या होगी, कुछ पर्पस को फुलफिल करने के लिए होगी. क्रिएटिविटी ब्लोसम्स, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी वो क्या खिलेगी, वो बाहर आएगी. व्हेन क्रिएटिविटी ब्लोसम्स, थिंकिंग इमनेट्स, हमारी बच्चों की थिंकिंग बढ़ेगी. एंड दिस थिंग, व्हेन थिंकिंग इमनेट्स, नॉलेज इज फुल्ली लिट, नॉलेज उसे पूरा मिलेगा, वो पूरा पढ़ेगा. एंड व्हेन नॉलेज इज फुल्ली लिट, इकोनॉमी फ्लरिशेस, अपने आप ही क्या होगी, हमारे देश की इकोनॉमी वो क्या होगी, बूम करेगी, फ्लरिश हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू APJ अब्दुल कलाम. ओके, अगर हम बात करें, यूनेस्को ने क्या कहा था? यूनेस्को ने कहा, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट ऑल चिल्ड्रेन, नो मैटर हु दे आर, वो कैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैन लर्न टुगेदर इन द सेम स्कूल. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, ये अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं है, इस इंडियन गवर्नमेंट की, ये यूनेस्को का ही मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि कोई मैटर हो, नो मैटर उसको कैसी प्रॉब्लम है बच्चों की, हमें क्या करना है, कैन लर्न टुगेदर इन द सेम रूफ, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को. तो इन्हीं सब बातों पे मैं इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई फाउंड मैं इससे बड़ी लकी कि आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन द टॉपिक in inclusive education. If you have, then I welcome you all. अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं. Okay, before ending this session, I must actually name some schemes run by government. Okay, and the scheme is IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिजेबल्ड चिल्ड्रन, जो आया था 1974 से 1992 तक. DDEP, द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, which was set up in 1994. SSA, सर्व शिक्षा अभियान, जिससे आप लोग परिचित हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं,
आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान, अभी हम उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तहत पढ़ रहे हैं उसके। ये आया था 2000 में। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यस सर, यस सर प्लीज। I have a question. यस सर। The students having any type of disabilities, यस whether they sit with other students or they should provide a separate classroom. ओके, हाउ कैन, Right. ओके How can manage that? It's in classroom or in a separate classroom. ओके सर, ही इज ट्राइंग टू आस्क अगर वो किसी अलग उसको प्रॉब्लम है तो हम लोग कैसे उसको फेस कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा और गेनिंग सम प्रॉपर ट्रेनिंग दैट कैन हैव, सो दैट कैन प्रोवाइड व्हाट वी आर गोइंग टू, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं वो उस तरह का हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एंड रीड ईच एंड एवरीज बॉयज माइंड, उसका माइंड, उसके माइंड को पढ़ना पड़ेगा हमें। एंड यूज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें रैंप होना चाहिए। हम वॉल्स, सबसे बड़ा हमारा वॉल्स जो खाली है बिल्कुल वैकेंट है, उसको हम अपने राइम से, टेबल से उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो these are the short techniques, short method you can apply for being a responsible teacher in front of your children. Okay, then I think I have made some points. I have made some points toward this topic, and it must be clear. आप समझ चुके होंगे इस को ठीक तरीके से। Then if और किसी क्वेश्चन है तो they can ask. You can raise your questions, you can raise your queries. Okay, then thank you. You are being a very polite and you can say बहुत पेशेंसफुल ऑडियंस हैं आप लोग, आपने बहुत अच्छे से क्लास सुना है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके सर।